I request you all to stand as a part of the protocol when the Honorable Chief Minister, our chief guest for today, arrives. And also welcome our Honorable Chief Guest, Shri Pushkar Singh Dhami ji, with a huge round of applause. वो हमारे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने बहुत अपने टफ शेड्यूल से हम लोगों के लिए समय निकाला है आज, तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर. आई रिक्वेस्ट रमेश चंद सर. I welcome all the esteemed dignitaries. You're all requested to please get seated. Let us start the conference with the blessings of Ma Saraswati. Lighting of the lamp is a powerful symbol of knowledge, wisdom, and triumph of light over darkness. Just as the lamp illuminates the surroundings, may it also illuminate our minds, guide us in our endeavors, and bring warmth to our hearts. As the dignitaries on the dais light the ceremonial lamp of knowledge and wisdom and seek blessings of the goddess of knowledge, Ma Saraswati, I request you all to keep this conference in your prayers and keep the state of Uttarakhand in your prayers. Let us all join hands and welcome our host of dignitaries with a huge round of applause. Namaskar and a very good morning to distinguished guests, ladies and gentlemen. I, on behalf of the Association of Social Sciences, Indian Association of Social Sciences in Science Institutions and Doon University, welcome you all to the inaugural session of the 24th IASSI Annual Conference. I take immense pleasure in welcoming our chief guest for the inaugural Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami ji, who has transformed our state into a state that is committed to delivering excellence in all fields. हम आपके आभारी हैं कि आपने इस annual conference के लिए अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला. Let's welcome him with a huge round of applause here. I welcome Professor Ramesh Chand, Member Niti Aayog, Government of India, and the President of the 24th IASSI Annual Conference. I hope all of you keep applauding for all these people because they are really adding a lot of value, not just to the dais, but to the conference also. I welcome Professor Sachin Chaturvedi, Honorable Vice Chancellor of Nalanda University, Bihar, and the Chairperson of IASSI. I welcome Professor Alak N. Sharma, Director, IHD, New Delhi. I welcome our Honorable Vice Chancellor, Doon University, Professor Dr. Surekha Dangwal. I welcome Professor R.P. Mamgain, Professor and Head of the Department of Economics, Doon University, and the Organizing Secretary of IASSI 2025. I also welcome Professor I.C. Avasthi, Member Secretary, IASSI, and Professor, Institute of Human Development, New Delhi, to the 24th IASSI Annual Conference. I also take this opportunity to extend a warm welcome to a host of dignitaries of the dais, the delegates who've traveled from different parts of India and abroad to make this conference a success. I also extend a warm welcome to students, volunteers, and friends from media. Uttarakhand has recently witnessed a disaster in Dharali, and we therefore wish to start our day by paying homage to the victims of the Dharali disaster.
I request you all to stand and observe silence for a minute and pray for the souls of the people we lost in the Dharali tragedy. Thank you so much. I now request our Honorable Vice Chancellor, Doon University, Professor Surekha Dangwal ma'am, to extend a warm welcome to our Honorable Chief Minister of Uttarakhand, who is our revered chief guest for the inaugural ceremony, Shri Pushkar Singh Dhami ji. And he's our very, very popular, Lokpriya, leader from the state of Uttarakhand, our head of the state of Uttarakhand. Ma'am, if you could felicitate sir with a small token of gratitude. Honorable Chief Minister is the youngest CM of Uttarakhand and is known for his approach of leading from the front and bold decisions. It is under his leadership that Uttarakhand became the first state of India to successfully implement the Uniform Civil Code. I now request ma'am to welcome Professor Ramesh Chand, Member Niti Aayog, and felicitate sir with a small token of gratitude. I request you all to keep applauding. Thank you so much. Thank you, ma'am. I request ma'am to also welcome and felicitate Professor Sachin Chaturvedi, our Honorable Vice Chancellor of Nalanda University, Bihar, and the Chairman of IASSI with a small token of gratitude. Thank you, ma'am. I request ma'am to felicitate Professor Alak N. Sharma, Director IHD, New Delhi, with a small token of gratitude. I request ma'am again to please felicitate Professor I.C. Avasthi, Member Secretary, IASSI, and Professor, Institute of Human Development, with a small token of gratitude. I now request Professor R.P. Mamgayan, the Dean School of Social Sciences, and our Conference Secretary, to please felicitate our Honorable Vice Chancellor, ma'am, with a small token of gratitude for all her support and inspiration throughout this conference. This is made by local artisans from the state of Uttarakhand, and that is why this piece is very special. Uttarakhand is a very special state, and the artisans of Uttarakhand for sure are also very special. I also request Professor I.C. Avasthi to please felicitate Professor R.P. Mamgayan, the Conference Secretary, with a token of gratitude. Thank you so much, sir. Thank you. Doon University is a progressive university of India that constantly makes an endeavor to contribute to the cause of nation building by nurturing the next generation of the country and making them true global citizens. From being the first and the only state government university in the state of Uttarakhand, which is being supported by the Ministry of Science and Technology, Government of India, under its PERS scheme, the only university that has an MOA with the National Research Development Corporation, and now a university that is excelling as a part of the pair network of IIT Madras. The university is creating its own niche under all its schools. It is working relentlessly in the direction of placing India as the Gurukul of the world. We thank the Indian Association of Social Science Institutions for choosing Doon University, located in the Dev Bhumi of India, Uttarakhand, as their collaborative partners for the 24th IASSI conference. Doon University is truly privileged to host this international conference of IASSI in the year 2025. The Indian Association of Social Science Institutions was established in the year 1979. It is a federal formation of academic bodies that aims to promote and strengthen teaching and research in the field of social sciences. This conference brings together the best
minds from India and abroad to discuss, deliberate, and brainstorm on critical themes like addressing climate change and environmental challenges, urbanization and sustainable development, and enhancing livelihoods and promoting well-being. We sincerely hope that the plenary sessions, technical sessions, and the general discussions spread across these 3 days will serve as a policy input for the government and other stakeholders. With over 250 papers, this conference truly promises to be one of its kind and aims to have a lot of takeaways for everybody who is a part of this conference. I now take this pleasure of introducing Professor R.P. Mangain, the Dean School of Social Sciences and the Conference Secretary, and I request him to please deliver the opening and the introductory remarks on the conference. So. Thank you, Professor Swati. Namaskar. Respected Chief Guest, Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Sri Pushkar Singh Dhami ji, distinguished dignitaries on the dais, respected Vice Chancellor Professor Surekha Dangwal Madam, Conference President Professor Ramesh Chand, Member Niti Aayog, Professor Sachin Chaturvedi, Vice Chancellor Nalanda University and the Chairman of Indian Association of Social Science Institutions, Professor I.C. Awasthi, Honorary Secretary of ISI, eminent scholars, researchers, Professor Sharma, policy practitioners, distinguished guests, faculty members of Doon University, and my dear research scholars and students. Very, very good afternoon to all of you. It is indeed my privilege and honor to welcome you to the 24th Annual International Conference of the Indian Association of Social Science Institutions, being organized by the Department of Economics, School of Social Sciences, Doon University, in collaboration with ISI. Doon University, as Swati has said, located in the serene valley of Dehradun, has in short span established itself as a vibrant center of interdisciplinary learning, innovation, and research. The university's School of Social Sciences strives to engage with the pressing developmental challenges of our time, from livelihoods to migration to environment, governance, and social equity. Hosting this prestigious conference reflects our deep commitment to research that constitutes classrooms, communities, and knowledge with policy. This year's conference is built around 3 themes, which are very, very crucial and interlinked. These are addressing climate change and environmental challenges, urbanization and sustainable development, and enhancing livelihoods and promoting well-being. These 3 themes resonate strongly with the development priorities of our country and our state of Uttarakhand. As we witness rapid urban transitions, changing climate patterns like Dharali disaster, and evolving livelihoods structures, it becomes increasingly essential to bring together insights from across social science disciplines to design policies that are inclusive, sustainable, and evidence-driven. Conferences like this provide an invaluable space for such dialogue, enabling us to connect academic research with the work of policy think tanks, government institutions, and civil society organizations. We are deeply honored by gracious presence of our Honorable Chief Minister Sri Pushkar Singh Dhami ji, जो एक बहुत ही सशक्त चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत ही यंग, डायनेमिक, एनर्जेटिक और एकदम विजनरी चीफ मिनिस्टर हैं, जो कमिटेड हैं अपने पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे प्रांत के लिए. He has kindly consented to inaugurate this important international conference despite his busy schedule. Sir, आपकी प्रेजेंस और इस कम्युनिटी के जो यहाँ पे सब लोग गैदर हो रखे हैं, मुझे लगता है कि जो आपका विजन और मिशन है वो बहुत ही प्रेरणादायक हम सभी लोगों के लिए होगा. We express our sincere gratitude to Honorable Governor of Uttarakhand, Lieutenant General Gurmeet Singh ji, who will grace the valedictory session day after tomorrow. We are especially honored to have Professor Ramesh Chand ji, a leading economist and policy maker, as the conference president, whose guidance has enriched the agenda and direction of this gathering. Sir, earlier you have been here 2 years back
and you inaugurated our one of the conference called Development Experiences of Uttarakhand, Achievements, Challenges, and Way Ahead. The proceedings of that conference has been very intensively used by the government of Uttarakhand in its policy documents. ISI is a practice of, has a practice of hosting its annual conferences on rotation basis across universities and research institutions is a remarkable tradition, one that ensures diversity, inclusivity, and regional representation in the national dialogue on social sciences. We are delighted to and honored that this year the baton has come to Doon University, giving us the opportunity to host this vibrant intellectual congregation of academicians, policy makers, public representatives, senior government officials, and young researchers who have gathered here from different parts of the country and other countries. Sir, for this, I take this opportunity to express my sincere gratitude to IASSI, particularly its chairman, Professor Chaturvedi, BC Nalanda University, Professor S.R. Hasim, who is sitting there. He's a former chairman of ISI and former member, Secretary of Planning Commission, Professor Alak Narayan Sharma, Director Institute for Human Development, for bestowing their faith on us to organize this conference. I am grateful to our energetic and visionary Vice Chancellor, Professor Surekha Dangwal, Madam, for extending her valuable guidance and support in organizing this conference here in Doon University. I am grateful to our valued sponsors for the conference, like Indian Council of Social Science Research, Ministry of Earth Sciences, NABARD, Bankers Institute of Rural Development, Department of Urban Development, Government of Uttarakhand, Center for Public Policy and Good Governance, Government of Uttarakhand, Uttarakhand Gramin Bank, International Food Policy Research Institute, Institute for Human Development, and Indian Society of Labor Economics Research and Development Trust, and various other institutional partners for their generous support, which has made this event possible. Their continued encouragement reminds us that academic discourse must always be anchored in societal relevance. On behalf of the organizing committee, I join my Vice Chancellor, Professor Dangwal, Madam, to extend a heartfelt welcome to all the delegates, paper presenters, and participants from across India and abroad. I am confident that over the next 2.5 days, your deliberations will generate new ideas, collaborations, and insights that will contribute to both academic progress and policy reform. With that, I once again welcome you all to the 24th IASI International Conference. Let's engage, reflect, and together chart pathways towards a more equitable, sustainable, and inclusive future, and make this conference a remarkable event. Thank you. Thank you for your attention. Thank you so much, Mamgayan sir, for setting the tone of this conference. I now have the pleasure of introducing the Honorable Vice Chancellor of Doon University, Professor Surekha Dangwal. Professor Dangwal has over 35 years of rich experience in academics and academic administration. She's a distinguished academician, a visionary leader, and a sound policy maker, and someone who truly leads by example. Ma'am, can we have the welcome address? Thank you so much, Professor Swati Best. 24th Annual International Conference of Indian Association of Social Science Institution में दून विश्वविद्यालय के डॉक्टर नित्यानंद सभागार में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में हमारे राज्य के यशस्वी युवा एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो दिल्ली पिछले 3 दिन से उत्तराखंड की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं के संबंध में गैलेक्सी ऑफ मीटिंग्स को अटेंड करने के बाद आज सुबह दिल्ली से सीधे हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड में लैंड करे, आपके इस कमिटमेंट के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में प्रोफेसर रमेश चंद जी हैं, वो पहले भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस में आए। आप मेंबर नीति आयोग हैं, सर आपका बहुत बहुत
अभिनंदन है, आज सुबह आपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया। हमारे बीच में प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी हैं, जो चेयरमैन हैं IASSI के और वाइस चांसलर हैं नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रोफेसर IC अवस्थी मेंबर सेक्रेटरी हैं इस एसोसिएशन के, और प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट न्यू दिल्ली के प्रोफेसर अवस्थी। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। हमारे जो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें जितने भी प्रतिभागी हैं, 300 से अधिक इस एसोसिएशन के मेंबर हैं, और देश और विदेश से जितने प्रतिभागी यहाँ पर आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे इसके सत्र हैं कि पूरे टेक्निकल सेशंस में ये कॉन्फ्रेंस अपने गंतव्य तक पहुंचेगी, कुछ आउटकम तक पहुंचेगी। और मैं सभी ऑडियंस से ये शेयर करना चाहती हूँ कि इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके जो आउटकम थे, वो हमने एक बुकलेट फॉर्म में माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत किए थे। और ये बताते हुए मुझे हर्ष है कि जब भी बजट डिसाइड होता है, मुख्यमंत्री जी एक मंथन करते हैं, एक चिंतन करते हैं, और उसमें दून विश्वविद्यालय की पॉलिसी इंटरवेंशन को और हम लोगों को जरूर आमंत्रित करते हैं कि यदि आपके कोई सुझाव हैं तो वो बजट में भी रखे जा सकते हैं। और कई ऐसे सुझाव थे जिनको डायरेक्टली आपने वहीं ऑन द स्पॉट बजट में उसकी व्यवस्था करी, और वो आज उत्तराखंड की विमेन लाइवलीहुड और अन्य जितनी नीतियां हैं उनमें बहुत सहयोगी का काम कर रही है। मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूं कि जो 3 मेजर थीम पे ये पूरी एसोसिएशन का 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, धराली ही नहीं, थराली, पिथौरागढ़, चमोली और देहरादून, इस समय प्लेन क्या और पहाड़ क्या, जिस आपदा को उत्तराखंड ने इस समय फेस किया, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चुनौती सरकार के सामने थी, समाज के सामने थी और हम लोगों के सामने थी। उसमें जो क्लाइमेट चेंज का इशू है या जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है, रेजिलेंस है, जब सिलक्यारा टनल का एक सेफ इवैक्यूएशन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया, तो वो हमारी प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण था, जिसके कारण हम 28 नवंबर को हमेशा उन मजदूरों के साथ, उनके जो लीडर थे, जो अंदर उनका हौसला बता रहे थे, विक्रम सिंह जी, उनके साथ हमेशा इस दिन को उत्तराखंड की ओर से आपदा से निपटने की तैयारियों के रूप में और माननीय मुख्यमंत्री के सशक्त नेतृत्व के रूप में मनाते हैं। और इस समय भी 28 नवंबर को एक वर्ल्ड डिजास्टर कांग्रेस होने जा रही है, जिसमें हम सिलक्यारा को हमेशा एक आउटकम के रूप में, एक सॉल्यूशन के रूप में हमेशा याद करते रहेंगे। उसके लिए भी आपका माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी आपदा में आप बिल्कुल त्वरित गति से केवल ऑन द स्पॉट नहीं पहुंचे, बल्कि उन सारी तैयारियों को देखा। और मुख्यमंत्री जी का किसी प्रोग्राम में आना आपने देखा, हमने NSIL किया, बहुत बड़े लेवल पे किया, नेशनल समिट ऑफ इंस्टीट्यूशनल लीडर्स, जिसमें 150 के करीब वाइस चांसलर्स, IIT, IIM के डायरेक्टर्स, UGC के चेयरमैन, NAC के चेयरमैन, AICT के चेयरमैन, NCT के चेयरमैन, सारे लोग हम इसी ऑडिटोरियम में इकट्ठे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को उस दिन उसका उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में आना था, लेकिन उसी समय एवलॉन्च माणा में आ गया और मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर दून विश्वविद्यालय की जगह चमोली पहुंच गया, और त्वरित गति से उस प्रिपेयर्डनेस से कई मजदूरों की कुछ जनहानि हुई, लेकिन कई मजदूर भाइयों को सुरक्षित उस एवलांच से निकाला गया। ये जो उसकी पहली थीम है, कैसे हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को एड्रेस कर पा रहे हैं, फार्मर्स पे उसका क्या इफेक्ट है, एग्रीकल्चर पे उसका क्या इफेक्ट है, डे टू डे लाइफ पे क्या इफेक्ट है, ओवरऑल हिमालय का क्या नेचर हो रहा है, जिससे कि पूरे देश और पूरे विश्व की ओर एक सिग्नल जा रहा है। उस पे बहुत सारे पेपर मैं देख रही थी, इसमें प्रेजेंट किए जाएंगे। अर्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
पिछले 1 साल से दून विश्वविद्यालय में अर्बन डेवलपमेंट मैनेजमेंट का MSc कोर्स की शुरुआत की है, जो हमारे बच्चे बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सेप्ट अहमदाबाद के साथ MOU और पूरी क्वालिटी के साथ इस कोर्स को चला रहे हैं। अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, सस्टेनेबिलिटी कैसे मेंटेन की जाए, कैसे अपने शहरों को एक सुरक्षित स्पेस किया जाए, कैसे अर्बन ग्रीन स्पेसेस का डेवलपमेंट किया जाए थ्रू इंस्टीट्यूशन एंड थ्रू ऑल द सेटलमेंट्स, कैसे अर्बनाइजेशन को एक साइंटिफिक तरीके से मैनेज किया जाए, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर अपनी भूमिका सुनिश्चित की है। इनहैंसिंग लाइवलीहुड एंड प्रमोटिंग वेलबींग, ये एक ऐसा थीम है जिस पे हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत आगे बढ़कर काम किया है। जितने स्टॉल्स आपको दिए गए होंगे रजिस्ट्रेशन में, जितने बैग दिए गए होंगे, इसमें उत्तराखंड की महिला आर्टिसन की पूरी 100% बेनिफिट के साथ उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से उनको जो लोन दिया जाता है, जो 0% इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है, उनको समय समय पर प्रमोट किया जाता है। और जो हाउस ऑफ हिमालय प्रोडक्ट भी है, जो हम अपने नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उनको सरकार की ओर से भी और सभी संस्थाओं की ओर से उनको हाउस ऑफ हिमालय के प्रोडक्ट दिए जाते हैं। ऐसा बड़े लेवल पे पहाड़ की महिलाओं और पूरे 13 जिलों की महिला आर्टिसंस को विशेष रूप से प्रमोट किया जा रहा है कि हम जब तक अपने उत्पाद, अपने स्वदेशी उत्पाद, अपने क्षेत्र के उत्पाद को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक इकोनॉमिक्स की बड़ी थियरीज के साथ हम कोई आउटकम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, क्योंकि आपने इसमें NGOs को भी शामिल किया है, कुछ उन लोगों को भी शामिल किया है जो इन ग्रुप्स को चलाते हैं। आप सब लोग उनकी सक्सेस स्टोरीज को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे इस पूरी कॉन्फ्रेंस से बहुत उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और वो इसके इनॉग्रल में आए। हमारे राज्यपाल जी, जो चांसलर हैं दून विश्वविद्यालय के, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, वो इसका समापन करेंगे और इस तरीके से इसको एक भव्यता प्रदान की आपकी उपस्थिति ने। आप जितने भी युवा यहाँ पर बैठे हैं, हर हाथ को काम हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है। हर वो सरकारी रोजगार हो, उसके लिए सख्त नकल विरोधी कानून की व्यवस्था की गई है। और सभी लोगों ने देखा होगा, हमारे युवा बहुत टाइम से उद्वेलित थे, क्योंकि माफिया की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कितना ही उनको आप कठिन तरीके से मैनेज करें, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम छोटे लेवल पे सही आती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, एक शिक्षण संस्थान में होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने उन उद्वेलित युवाओं, जिनकी मांग बिल्कुल जस्टिफाइबल थी, बिल्कुल सही थी, और वो जानना चाहते थे कि परीक्षाएं इतने नकल विरोधी कानून से, पारदर्शिता से आपने 25,000 सरकारी नौकरियां दी, तो फिर इस एग्जाम में ये पेपर बाहर कैसे गया, चाहे एक ही सेंटर में गया। और ये आपका बड़ा दिल है, आपका सशक्त नेतृत्व है कि आपने उस धरना स्थल पर पहुंचकर युवाओं से बात की और उनका सॉल्यूशन निकाला। इसके लिए भी दून विश्वविद्यालय की ओर से आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि वो युवा बहुत ही सेटिस्फाइड थे। और जो आपने उसके बाद जांच चल रही है, जो उनकी मांग के अनुसार आपने कहा वो चाहते हैं CBI जांच हो, तो CBI जांच की जाएगी, क्योंकि बिना संवाद के कोई भी समस्या खत्म नहीं हो सकती। और जिसकी समस्या है उसके बीच में जाके सुनी जाए तो वो अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक, एक्सेसिबल, सरल व्यक्तित्व की निशानी है। आपके वो तमाम कार्य, दून विश्वविद्यालय विशेष रूप से आपका आभारी है कि हम आपके द्वारा जितने एक्सपेक्ट किया गया, हिंदू स्टडीज आपका एक सपना है। हमने इस वर्ष से हिंदू स्टडीज शुरू कर दिया MA में, और न केवल MA में किया, उसके बहुत सारे कोर्सेज BA में वैल्यू एडेड कोर्सेज की तरह उनको शुरू किया गया, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद सभी के क्रेडिट के हिसाब से कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत जल्दी
इसमें हम परमानेंट फैकल्टी आपकी ओर से दी गई है उसको यहाँ पर लाएंगे और ये एक सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा का उत्तराखंड में अपने आप में एक मजबूत सेंटर यहाँ पर स्थापित होगा, ताकि एनईपी के अनुसार जड़ से जगत तक की यात्रा यहाँ पर की जाए। एआई का सेंटर होगा, साइबर सिक्योरिटी का सेंटर होगा। जितनी डिमांड दून यूनिवर्सिटी की ओर से आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपका बार बार आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने कभी भी दून विश्वविद्यालय को निराश नहीं किया, चाहे आपकी शोध परियोजना के लिए ग्रांट हो, चाहे आपकी सर्वश्रेष्ठ पब्लिकेशन के लिए ग्रांट हो, चाहे मेधावी छात्रों, शायद ही दून विश्वविद्यालय का कोई छात्र होगा जिसको छात्रवृत्ति ना मिलती हो। एक बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति से हमारे इस विश्वविद्यालय के छात्र जो टॉपर बच्चे हैं वो लाभान्वित होते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका समय समय पर हम वर्णन करते रहेंगे। आपके इस सशक्त प्रशासनिक छवि, एक पॉपुलर प्रशासनिक छवि, एक पॉपुलर जननायक के रूप में आप उत्तराखंड में स्थापित हैं। आप दून विश्वविद्यालय को आपने ये समय दिया इसका इनॉग्रल करने का, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि देश विदेश से बहुत प्रतिनिधि आ रहे हैं। अगर ब्लेसिंग्स आपकी मिल जाएंगी उद्घाटन में, तो ये सत्र बहुत अच्छी तरीके से आगे, बहुत ही ड्रिलिंग पैरेलल सेशंस हैं, उसमें ये जाएंगे। जो भी इसके आउटकम होंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले बार की तरह इस बार भी उनको सौंपेंगे, ताकि वो अपनी नीतियों में इसको लागू कर सकें। और एक इस पहाड़ी राज्य में नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर हैं। समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी नीति आयोग में हिमालय राज्य का अपना पक्ष रखते आए हैं। वो सारे पक्ष को देखते हुए और सुदृढ़ नीतियाँ इस राज्य के लिए बनेंगी। एक बार पुनः मैं मंच पर आसीन अपने सभी अतिथियों का, विशेष रूप से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और हार्दिक आभार भी व्यक्त करती हूं। जितने हॉल में रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं दूर दूर से, किसी भी तरीके की आपको परेशानी होगी तो उसको बेयर करते हुए आप इस एकेडमिक चर्निंग में यहाँ पर भाग ले रहे हैं, उस सभी के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much, ma'am. I now take this privilege of introducing Professor Sachin Chaturvedi. I'm sure he doesn't need an introduction, but I would still read a few lines. The chairman of IASSI, Professor Sachin Chaturvedi, is the Honorable Vice Chancellor of Nalanda University, a distinguished academician and a policy expert. He has been a global justice fellow at Yale University and currently serves as an independent director on the board of Reserve Bank of India. A visionary thinker and institution builder, Professor Chaturvedi continues to shape global dialogues on inclusive and sustainable development. I would also like to acknowledge his generous academic and financial contribution towards this conference. It is indeed a great privilege to invite the chairman of IASSI and the Honorable Vice Chancellor of Nalanda University to deliver his special address. Sir, please. Thanks, Professor Swati. उत्तराखंड के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री धामी जी, हमने अभी वाइस चांसलर महोदया से उनके जो उत्तराखंड में तमाम विषयों पर जो उनके सहयोग से इस विश्वविद्यालय में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस प्रदेश में जो काम हो रहे हैं उसके बारे में हमने अभी वृतांत सुना। मंच पर ही हमारे आदरणीय रमेश चंद जी हैं, जो जिनका हम लोगों ने आज प्रेसिडेंशियल एड्रेस सुबह सुना। हमने उन एग्रीकल्चर के सामने जो देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसकी चर्चा भी सुनी। मंच पर ही हमारे साथ में विश्वविद्यालय की कुलपति खुद हैं प्रोफेसर डंगवाल जी। उन्हीं के सौजन्य से आज ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर इस सफलता के साथ हो रही है। मैं विश्वविद्यालय को, दून विश्वविद्यालय को, नेतृत्व को और सुरेखा जी को धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा कि आपके नेतृत्व में हम लोगों को यहाँ जो हॉस्पिटैलिटी मिली है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन एसोसिएशन आपका बहुत आभार व्यक्त करता है कि आपने हम लोगों को यहाँ आने का मौका दिया और जिस सफलता के साथ
आपकी टीम ने पर्टिकुलरली हमारे राजेंद्र जी ने जिस सफलता के साथ इसका आयोजन किया, वो भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इस पूरे एसोसिएशन के लिए जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन की ताकत लगा रखी है, उसमें हमारे प्रोफेसर अलक शर्मा जी जो मंच पर ही हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हाशिम साहब जो सामने बैठे हुए हैं, हम लोगों के साथ आज प्रोफेसर पम्मी दुआ, प्रोफेसर कुंडू येन फ्रॉम OECD, बट ऑल्सो मुझे लगता है कि ब्रिगेडियर कपूर और रश्मि जी, आप लोगों के सहयोग से आज हम सोशल साइंस के जिन विषयों की चर्चा कर रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2 या 3 बातें मुझे लगता है इस एसोसिएशन के संबंध में कही जानी चाहिए, और कुछ बात जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ वो महत्वपूर्ण है। पहला, ये जो इंडियन एसोसिएशन है हमारे सोशल साइंस के इंस्टीट्यूशंस का, जिसको हम IASI बोलते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस, इसका एक बड़ा प्रयास ये है कि देश के अंदर जो समाज विज्ञान की शोध है उसको हम विज्ञान के साथ कैसे जोड़ें। जो बार बार ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी आता है कि लोकल कंस्ट्रक्शन के कारण पर्यावरण में बदलाव और जो पर्यावरण से संबंधित दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका कारण कंस्ट्रक्शन है, ये एक हमें वैज्ञानिक धरातल पर देखने की आवश्यकता है। जो हिमालयन रीजन में हिमालय के किसी भी हिस्से में कार्य हो रहा है उसका स्थानीयकरण और उसका स्थानीय प्रभाव, ये दोनों माध्यमों से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों के कई तत्व हमारे सामने आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि हिमालय में कहीं भी गतिविधि हो रही है तो उसका असर पूरे क्षेत्र में हो रहा है। उसका लोकल कंस्ट्रक्शन से, लोकल विकास के जो आउटकम है उससे लिमिटेड ही उसका असर है। तो ये हमें एक व्यापक संदर्भ में देखना होगा। उसमें समाज और राष्ट्र की चिंता, जैसे हमारी माननीय वाइस चांसलर महोदया ने कहा, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। तो सोशल साइंस और नेचुरल साइंस, इसका कन्वर्जेंस कैसा हो। अभी जब मैंने नालंदा का पदभार लिया उसके बाद मेरे देखने में आया कि कैसे 5वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत में ये अंतर नहीं था। ये पिछले 3 शताब्दियों में जो हमारे पश्चिमी राष्ट्र हैं उन्होंने ये फ्रेगमेंटेशन किया है। नहीं तो भारत का सोच नेचुरल साइंस को और सोशल साइंस को एक साथ लेने का था। जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स पढ़ते थे, जो विज्ञान पढ़ते थे, वही अर्थशास्त्र भी पढ़ते थे और वही फिलॉसफी भी पढ़ते थे, वही एथिक्स भी पढ़ते थे। इकोनॉमिक्स का ऐसा ज्ञान जो एथिक्स से विमुख हो, समाज विज्ञान का ऐसा ज्ञान जो इंजीनियरिंग से विमुख हो, इंजीनियरिंग ऐसी जो समाज से विमुख हो, उसके कोई मायने नहीं है। तो ये हमारा एसोसिएशन सबसे पहले इस कार्य को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम करने के लिए आगे आया है, जिसमें हम लोग, जो आप सत्र भी देख रहे होंगे, सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित हैं और कई सत्रों में हम लोगों ने इस बात का प्रयास किया है कि हम उसको देखें। दूसरा महत्वपूर्ण विषय AI और नए टेक्नोलॉजी का प्रभाव है, और इसमें हमारी कोशिश है कि जो एल्गोरिदम्स हैं, जो उनकी पोटेंशियल बायसेस हैं, जो एथिकल कंप्लेंट्स हैं, उनको हम कैसे एड्रेस करें। और ये जो एथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ में बदल चुका है AI का डिस्कशन और डिबेट, उसको हम कैसे एड्रेस करें। इस एल्गोरिदम के जो डेटा सेट्स तैयार हो रहे हैं वो भी उतने ही बायसेस से भरे हुए हैं, और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी डायलॉग को आगे बढ़ाएं। जब हम ChatGPT पे से कुछ निकालते हैं या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म्स के बेसिस पे अपने रिसर्च सबमिट करते हैं, तो जो सोशल साइंस के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सामने इसको डिटेक्ट करना, उसको लोकेट करना, उसको प्लेगरिज्म की कैटेगरी में लेकर के आना और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो रहा है। और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कैपेबल एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स तैयार करें जिससे सोशल इंस्टीट्यूशंस प्लेगरिज्म की इस नई डेफिनेशन में उनको देख सकें। इसका एक तीसरा प्रभाव जो विकासशील देशों के लिए है, जो विकासशील देशों के लिए पब्लिकेशन की एक हमेशा से समस्या रही है। अभी वर्तमान सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के थ्रू हमें एक्सेस सुलभ कराई है,
और अब ये आसान हुआ है सभी लाइब्रेरीज़ के लिए, पर्टिकुलरली नेचुरल साइंसेज में, और धीरे धीरे अब सोशल साइंस में भी ये आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि इन जर्नल्स का जो बहुत महंगे हैं, हम उनको एक ही दाम पर पूरे देश में एक्सेस कर सकें। लेकिन इससे दूसरा जुड़ा हुआ मुद्दा है, which is more for researchers who are going to publish themselves in those journals. And the phenomenon of p-hacking is something which we all are witnessing. P-hacking is bringing in and is also described as data dredging or data snooping. It is in terms of identifying the priorities for the choices which publishing houses are making, or the peer review process is making. This is also in terms of bypassing the peer review process in such a manner that the authors stop at a point and do not allow results to come in fully for some interpretation. उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए जहाँ पर कि लगातार हम ये विपदाएं देख रहे हैं, हिमालय के सभी राज्यों में ये विपदाएं आ रही हैं, लेकिन उस डेटा का इंटरप्रिटेशन और उसका जो सोशल और इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन है, उससे संबंधित हमारी स्ट्रेटेजी ये महत्वपूर्ण हमारे लिए पड़ाव है कि हम उसको देखें और उसको आगे लेकर के जाएं। तीसरा महत्वपूर्ण विषय डीकोलोनाइजेशन है, जहाँ पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आएँ। रिसर्च मेथडोलॉजीज़ में ये बहुत आवश्यक है कि जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैडम ने जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करी, उसका एक राजनीतिक नेतृत्व उस बात को सामने रखता है, लेकिन ये हमारी इंस्टीट्यूशंस का काम है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, कि वो उस थ्योराइजेशन की तरफ बढ़ें। और ये थ्योराइजेशन का अगर एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं, जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय से आता है, हम लोग बार बार कई जगह कहते हैं कि भारत में शून्य का आविष्कार हुआ, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भारत में शून्य का आविष्कार कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये हमारे ध्यान में नहीं आता। हम ये भूल जाते हैं कि जब शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने हमारे सामने रखा, तो आर्यभट्ट के सामने क्या था? आर्यभट्ट के सामने नागार्जुन की फिलॉसफी थी। तो नागार्जुन, जो नालंदा के उस समय वाइस चांसलर को मास्टर कहा, तो जो मास्टर्स ऑफ नालंदा, they were trying to imagine, and Nagarjun's philosophy of bringing in absolute equanimous position in which you can imagine that there is no movement. This idea of Nagarjun gave power, enabled Aryabhatta to think in terms of shunya. And that's how we got zero in our imagination. That's how we got the numbers. People call them Arabic numbers. But now more and more research are coming in where they are showing that the numbers originated from India and not just the zero. So the idea of combining social, philosophical, economic, and also natural sciences together would bring in. As I close, 3 points I want to quickly mention. IRC की सबसे बड़ी ये प्रयास कि सोशल और नेचुरल साइंसेस साथ में काम करें। भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए जो थ्योराइजेशन की आवश्यकता है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ें। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो फिर से हमारी वाइस चांसलर महोदया ने रखा, मैडम, जिस एक्सेस और इक्विटी की आपने बात करी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास कि महिलाओं को कार्य मिले और कॉन्फ्रेंस में उनके बैग मिलें, ये एक छोटा उदाहरण भले ही हो सकता है, लेकिन इसका संदेश बड़ा है और इसलिए इसको हमने एक्सेस, इक्विटी और इंक्लूजन कहा है। तो ये जो AEI फ्रेमवर्क है, इसको हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के फ्रेमवर्क में 38 इंडिकेटर्स के साथ चूज़ किया है। मैं समझता हूँ ऐसे कई सारे प्रयास हमको लेने होंगे जो इस थ्योराइजेशन को हमारे एसोसिएशन और एसोसिएशन से जुड़ी संस्थाओं को सजग और सहर्ष स्वीकार करने की हमारी जो भारतीय सोच का विषय है, वो उनके सामने लेकर के आ सके। धन्यवाद। Thank you, Sachin sir, for your inspiring words. The president of the 24th IASSI Annual Conference is Professor Ramesh Chand, a distinguished economist and the member of Niti Aayog, the apex policy think tank of the Government of India. With a PhD in agriculture economics, he has made some outstanding contributions in agriculture,
food security, and rural development policy. Professor Chand has several prestigious national and international bodies, including the 15th Finance Commission. Sir, can we have the pleasure of listening to you? आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, IASSI के चेयरपर्सन और नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सचिन जी, वाइस चांसलर ऑफ डून यूनिवर्सिटी मैडम सुलेखा डांगवाल जी, मंच पर उपस्थित अन्य डिग्नेटरीज, हॉल में उपस्थित सभी डिग्नेटरीज, डेलीगेट्स, मैं सर्वप्रथम कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि वो अपना समय निकालकर हमें अपना समय दिया, इस कॉन्फ्रेंस के इनागुरल फंक्शन में आए और इससे हमारी कॉन्फ्रेंस का जो एक लेवल है वो डेफिनेटली एलिवेट होगा और उनकी उपस्थिति एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी सभी डेलीगेट्स के लिए। और मुझे यह भी आशा है कि वो एक थिंकर भी हैं, वो हमारे साथ कुछ मार्गदर्शन के रूप में कुछ मुद्दे जो हमें जिन पे चिंतन करना चाहिए, आशा करता हूँ वो भी शेयर करेंगे। मैं सोशल साइंस और ISI के बारे में सचिन जी ने बोला है, वो दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि हम उत्तराखंड में इनकी हॉस्पिटेबिलिटी एंजॉय की है और मुख्यमंत्री जी ने हमें समय दिया है। तो ब्रीफ में 3-4 ऑब्जर्वेशन उत्तराखंड के विकास के बारे में, उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में शेयर करना चाहूँगा। एक तो आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जैसे वाइस चांसलर मैडम ने बताया कि उत्तराखंड किस तरह से कोई भी जो नवाचार हैं, कोई नई चीज़ हैं, उसमें पहल ले रहा है। तो उत्तराखंड 4-5 ऐसे प्रदेशों में है जिन्होंने नीति के पैटर्न पे अपने प्रदेश में उस तरह के संस्थान की स्थापना की। इन्होंने आज से 2 वर्ष पहले स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड की स्थापना की। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से नीति योग केंद्र में और स्टेट्स के साथ संबंध बना के विकास को आगे ले जाने में एक अपना रोड मैप तैयार करता है, उसी तरह से सेतु को भी एक सुदृढ़ और समर्थ बनाकर वो प्रदेश में और प्रदेश से नीचे जिलों में सबको मिलाकर आगे कैसे उत्तराखंड का विकास होगा उसमें रोल प्ले करेगा। तो मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए, उनकी सोच के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सेतु का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया। दूसरा, सबसे पहले जब मैं मेंबर बना तो 16 से 18 तक मेरे को उत्तराखंड की जिम्मेदारी मिली थी। तब रावत साहब CM थे और फाइनेंस कमीशन के मेंबर के रूप में भी जब उत्तराखंड हमने विजिट किया तो चेयरमैन फाइनेंस कमीशन ने मुझे कहा कि आपने हिमाचल भी स्टडी किया है, ये मिलते जुलते हैं, थोड़ा इस पे आप नोट बनाइए। तब भी मैंने इसको एक स्टडी की और उस समय मैंने उत्तराखंड में एक रिफॉर्म एजेंडा पुश करने की कोशिश की, लेकिन फिर 19 के बाद कुछ परिवर्तन हुए, फिर वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। उसके 1-2 चीज़ें जो मेरे मन में थी, आज मैं मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी का एडवांटेज उठाते हुए वो ज़रा शेयर करना चाहूँगा। जब मैं 2 साल पहले आया था यहाँ पर, तब भी मैंने उनके बारे में जिक्र किया था।
पहले तो ये है कि हमें उत्तराखंड का विकास, क्योंकि हिल स्पेसिफिसिटी इतनी स्ट्रांग है, इनके कंपैरेटिव एडवांटेज हिल के इतने डिफरेंट हैं कंपेयर टू प्लेन रीजन्स, तो एक अलग किस्म की सोच यहाँ चाहिए। और उस सोच की कम्प्लेक्सिटी इसलिए भी बढ़ जाती है कि उत्तराखंड की पहचान एज ए हिल स्टेट, एज ए माउंटेन स्टेट है, लेकिन उत्तराखंड का यदि आप टोटल एरिया देखें तो प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा है। जो इनके डिस्ट्रिक्ट हैं देहरादून, हरिद्वार, ये ऊधम सिंह नगर, तराई रीजन, तो ऐसे करके वो रीजन का ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, नेट सोन एरिया कंपेयर टू जो बाकी उत्तरकाशी और जो है उनसे कहीं ज़्यादा है। तो एक चुनौती यहाँ से इनकी शुरू हो जाती है कि आपको एक जो है ट्विन स्ट्रेटजी, टू प्रोंग स्ट्रेटजी, पूरा प्रदेश है, आप ये नहीं कह सकते कि हम तो उसी को ही देखेंगे, लेकिन पहचान एज ए माउंटेन स्टेट है तो प्राइमेसी उसकी जो है वो बनी रहनी चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर कि जो प्लेन्स है वहाँ हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी और जो माउंटेन रीजन है वहाँ क्या होगी और दोनों की कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या है, उसको मन में रखते हुए आगे हम ले जाएं। दूसरा, मुख्यमंत्री जी, मैंने लगभग सभी माउंटेन स्टेट्स की प्रोग्रेस मैं थोड़ी मॉनिटर करता हूँ, मेरे इंटरेस्ट की वजह से भी, और कुछ मेरे पास भी हैं, जिम्मेदारी भी है। मैंने ये देखा कि माउंटेन स्टेट्स में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट यदि देखें तो वो सिक्किम अमर्ज हुआ है। चाहे वो छोटा प्रदेश है, लेकिन उसके इतने बड़े लेसन हैं माउंटेन स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि उत्तराखंड को अब उत्तराखंड हिमाचल कंपैरिजन छोड़ के जो मॉडल लेकर आगे चलना चाहिए वो सिक्किम का एक मॉडल है। तो वो मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि मैं एक रिसर्चर रहा हूँ, एम्पिरिकल एविडेंस के एब्सेंस में मैं कुछ नहीं बोलता। आज से 24-25 साल पहले इस सेंचुरी के बिगिनिंग में इन तीनों स्टेट्स में, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम और पूरा देश, यदि इसको हम लें तो जो सिक्किम है उसकी देश की एवरेज से भी पर कैपिटा इनकम कम थी, उत्तराखंड से 10% कम थी और हिमाचल से कोई 15% कम थी। इतना लो लेवल पे जो सिक्किम था। लेकिन 2007-8 के बाद वहाँ ऐसे डेवलपमेंट हुआ, आज सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से लगभग 3 गुना है। देश को विकसित होने में, विकसित भारत बनने में हम 23 वर्ष का समय लेकर चल रहे हैं, लेकिन मेरे आंकड़े हैं कि जो सिक्किम है वो विकसित प्रदेश की कैटेगरी में उस पर कैपिटा $14,000 की इनकम में या 12 लाख प्रति व्यक्ति की इनकम में अगले 12-13 साल में पहुंच जाएगा, जिस ग्रोथ रेट से वो अभी चल रहे हैं। तो मेरे विचार में एक मॉडल जो हिल स्टेट्स को देखकर चलना चाहिए कि वो कैसे यहाँ पहुँचे, तो वो एक मुझे लग रहा है कि माउंटेन रीजन ऑफ उत्तराखंड को देखकर हमें उसे लेकर चलना चाहिए। दूसरा, मैंने ये देखा कि इकॉनमी की स्ट्रक्चर के अंडर उत्तराखंड सर्विसेज सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है, टूरिज़्म सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट के बहुत बड़े सोर्स होते हैं और हैं भी, तो उनमें हमें थोड़ा स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि जब मुझे अलख जी ने बताया कि सीएम साहब आएंगे, तो मैंने अब जो पुराना मेरा डेटाबेस था उसको मैंने अपडेटेड कराया उत्तराखंड के डेटे को। तो मैंने देखा कि उत्तराखंड में जो उत्पादकता के संकेत हैं, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर के संकेत हैं, वो बड़े इनकरेजिंग है, बड़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है प्रोडक्टिविटी की। लेकिन जो प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट थी, या तो वो नेगेटिव थी या वो क्लोज बहुत ही लो, 1-आधा%। तो मुझे फिर मैंने उसको फर्दर एक्सप्लोर किया कि ऐसा क्यों है कि उत्तराखंड में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ दिखा रही है
लेकिन प्रोडक्शन जो है वो अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा रहा। तो ये पता ही है जो लोग इस प्रदेश से हैं, तो मैंने ये देखा कि 20% गिरावट जो उत्पादन में हुई वो केवल इस वजह से हुई कि एग्रीकल्चर लैंड फैलो लैंड होती जा रही है। एग्रीकल्चर लैंड फैलो लैंड होती जा रही है, उसे कोई कल्टीवेट नहीं कर रहा। और वो रुझान प्लेन के डिस्ट्रिक्ट में तो ऑलमोस्ट एब्सेंस है, उधम सिंह नगर में तो बढ़ रहा है, लेकिन यदि हम माउंटेन उनको रीजन को देखें, जैसे अल्मोड़ा में, उसमें गिरावट 44% आई है। पौड़ी गढ़वाल में केवल 1/3 एरिया पिछले 11 साल में रह गया जहां खेती होती है, 2/3 एरिया में अबंडन हो चुकी है जो वहां खेती होती थी, चाहे वो गोस्ट विलेज हैं, वहां से लोग आ रहे हैं। तो ये एक, इसके लिए ये तब भी चिंता का विषय था जब मैं 17-18 वर्ष में यहाँ आता था, तो मैंने कुछ सुजेशन दिया था कि कैसे हम नीतियों के मॉडल लैंड लीज लॉ को यूज़ करके इस लैंड को दोबारा हम फर्टाइल कर सकते हैं, उस एरिया को हम जो है दोबारा इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ ला सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस पे यदि दोबारा से पुनर्विचार गंभीर जो किया जाए तो उसमें मैं भी कोई योगदान यदि कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। पर ये विषय है कि यदि माउंटेन डिस्ट्रिक्ट्स में आधे से ज़्यादा लैंड फैलो होती जा रही है तो जाहिर है कि उसके जो एडवर्स इम्पैक्ट हैं उसको केवल प्रोडक्टिविटी की इंक्रीज कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगी। हमें उसको जो है वो देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इसके बाद मैंने देखा कि माउंटेन के लिए आइडियली सूटेबल ट्री हॉर्टिकल्चर रहता है। इकोलॉजी के प्रिंसिपल भी यही बताते हैं कि स्लोप के हिसाब से आपको एडजस्ट करना चाहिए। जहाँ बहुत टोपोग्राफी इस तरह की है, बहुत हाई स्लोप है, वहाँ ट्री हॉर्टिकल्चर, फिर थोड़ा नीचे ऑफ सीजन वेजिटेबल वगैरह वगैरह जो है उसे करना चाहिए। तो उस पे भी मैंने देखा कि उत्तराखंड में जो फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंडर एरिया होना चाहिए वो देश की एवरेज से भी कम है। और फ्रूट एंड वेजिटेबल मैंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में भी दिखाया था कि फ्रूट एंड वेजिटेबल की उत्पादकता जो फील्ड क्रॉप्स हैं उससे 6 से 7 गुना होती है। जो आपको 6 एकड़ से इनकम मिलेगी साधारण फसलों से, सीरियल पल्सेस से, वो फ्रूट और वेजिटेबल के केवल 1 एकड़ से आपको मिल जाती है। तो उसको भी हम एक जो डाइवर्सिफिकेशन माउंटेन स्टेट्स में जो होना चाहिए उस तरह का यहाँ पास्ट में एक ऐसा रहा है। लेकिन मैंने प्रदेश के पिछले 3 साल के इकोनॉमिक सर्वे जो बजट के टाइम होता है उसको पढ़कर मुझे बड़ा एक प्रोत्साहन सा मिला कि अब क्लस्टर हॉर्टिकल्चर के यहाँ डेवलप हो रहे हैं। बहुत से विलेजेस जो हैं उनको एज ए हॉर्टिकल्चर विलेज डेवलप किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि यदि हम उस जो इनिशिएटिव शुरू हुआ है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करें और देखें कि उसके जिस उम्मीद से हमने वो क्लस्टर बनाए उससे हमें वो रिटर्न मिल जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 3 साल में ही ये परिस्थिति हम इसको बदल सकते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें शुरू इसलिए होती हैं कि उनमें सब्सिडी होती है। यदि हम उनको प्रॉपरली मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो वो उसके बाद फिर वो रुक जाता है। तो मुझे ऐसा मेरा ये फीलिंग है कि शुरुआत बहुत अच्छी है कि मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो भारत सरकार का है उसका फ़ायदा सही रूप में पिछले 3-4 साल में प्रदेश ने उठाया है। लेकिन उसके परिणाम हमें तभी मिलेंगे यदि हम उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करके उसे जो है सेट कर देंगे। और समय की एक मर्यादा है, तो मैं अभी इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के इनागुरल फंक्शन में आने का समय निकाला। थैंक यू। Thank you so much, Professor Ramesh Chand, for your enlightening session. It is my proud privilege to introduce our Honorable Chief
guest for today's inaugural, Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami ji. श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे राज्य के एक लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हैं। धामी जी एक रिफॉर्मिस्ट मुख्यमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड राज्य में भारत के एक महत्वपूर्ण कानून जो कि नकल विरोधी कानून है उसको सफलतापूर्वक लागू होते हुए देखा है। जब उत्तराखंड में दुर्भाग्यपूर्ण सिलकियारा टनल दुर्घटना हुई तो वहाँ पे हमने धामी जी को लीड फ्रॉम द फ्रंट का एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़कर अपने सभी रिसोर्सेज का उपयोग करके सुरंग में फंसे हुए सभी श्रमिक भाइयों को सफलतापूर्वक बचाते हुए देखा है। To commemorate this, a World Congress on Disaster Management is held on 28th November each year in the state of Uttarakhand. His consistent and tireless efforts have placed Uttarakhand in the global map, and also under his able leadership, Uttarakhand has been ranked number 1 in the Sustainable Development Goal Index of India. It is under his leadership that Uttarakhand became the first state in India to successfully implement the Uniform Civil Code. He is working tirelessly towards Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's Viksit Bharat vision of 2047. Sir, we are so fortunate to have you as a head of our state, and आपकी leadership में हमें उत्तराखंड के लिए एक ही मोटो ध्यान में आता है, to greater heights always. I take this pleasure to invite our honorable chief guest for today, Honorable Shri Pushkar Singh Dhami ji, for delivering his special address, the chief guest address for today. Sir. भारत माता की, भारत माता की। इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन के इस 24वें वार्षिक सम्मेलन में मंच पर आसीन दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय श्री सचिन चतुर्वेदी जी, नीति आयोग भारत सरकार के सदस्य और जिनका अभी हम सब लोगों ने उद्बोधन सुना, प्रोफेसर रमेश चंद जी, अलख एन शर्मा जी, IC अवस्थी जी, SR हासिम जी, राजेंद्र ममगई जी विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र प्रोफेसर दून विश्वविद्यालय श्री श्याम अग्रवाल जी, उत्तराखंड आवास विकास परिषद JP ममगई जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे प्रोफेसरगण, सभी विभागाध्यक्ष, विभिन्न संस्थाओं से पधारे सभी महानुभाव, देश विदेश से आए हुए सभी अतिथिगण, विशेषज्ञ, सभी शोधकर्ता एवं अन्य सभी महानुभाव, मीडिया के सभी मित्र, मैं इस इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन के वार्षिक सम्मेलन पर आप सभी के उपस्थित होने पर आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे समाज और देश के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले आप सभी अपने अपने क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञ, विशिष्टताएं जिनके पास हैं, उनके समक्ष उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया कि IASSI के इस 24वें वार्षिक अधिवेशन में ये 3 दिनों में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जाना है, जिसमें सामाजिक कल्याण, अर्थशास्त्र, रोजगार, उद्योग, कृषि, तकनीकी, पर्यावरण और नगरीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देश विदेश के प्रख्यात विद्वानों द्वारा यहाँ पर बहुत सार्थक विचार विमर्श किया जाएगा, चिंतन मंथन किया जाएगा, आपस में संवाद किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चिंतन से निकला अमृत न केवल
सामाजिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में मार्गदर्शन का काम करेगा, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जन जन के कल्याण के लिए ठोस और व्यवहारिक उपायों के संकलन में भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं इस विशिष्ट अधिवेशन के आयोजन हेतु देवभूमि उत्तराखंड को चुनने के लिए IASSI के समस्त पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और उनकी पूरी टीम विश्वविद्यालय परिवार को भी इस अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य हो रहा है। आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के उपरांत पिछले 11 वर्षों में कई नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से देश के हर वर्ग के कल्याण की दिशा में संकल्पित होकर प्रयास किए जा रहे हैं। आज अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति उसके कल्याण के लिए प्रारंभ की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को मिल रहा है। वहीं सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके निरंतर सहयोग से हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के साथ साथ सतत विकास की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, साथ ही पति और पत्नी दोनों को पेंशन देने का निर्णय लेना हो, सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान करना हो, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन करना हो, अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान करना हो, या फिर प्रदेश के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाना हो। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार ने वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी संकल्पता के साथ प्रतिबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में हाल ही में हमारी सरकार ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन को सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, जन्म के समय लिंगानुपात, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, वित्तीय समावेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा क्रांति अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन और मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा, क्योंकि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य हमारा नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश में उस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड पर्यावरणीय रूप से एक संवेदनशील राज्य है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने इस साल जो हमको एक बड़ी चुनौती आपदा के रूप में, जिसका हमने पिछले 2-3 महीने से लगातार जिसका सामना किया है और पूरे राज्य के अंदर उसके कारण से
एक बड़ा नुकसान हुआ। धराली से 5 अगस्त से शुरू हुई ये आपदा पूरे राज्य के अंदर हर एक जनपद में बड़ी भीषण तबाही लेकर आई। हमारे राज्य में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन जैसी अनेक चुनौतियां हैं, जहां पर हमें बहुत प्रभावी तरीके से काम करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि एआई के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। हमें एआई संसाधनों को तेजी से अपनाकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि हमारी सरकार ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट, नेस्कॉम और बाधवानी फाउंडेशन के साथ 3 महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं, जहां एक और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से राज्य में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में समग्र और सतत विकास को सशक्त किया जा रहा है। वहीं नेस्कॉम और बाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, पाइथन, जनरेटिव एआई, कौशल विकास एवं स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। हमारे इन सभी नवाचारों का ये प्रयास है कि उत्तराखंड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। मेरा मानना है प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य के प्रत्येक नागरिक को सामूहिक रूप से प्रयास भी करने होंगे, तभी हम एक जैसी सोच है, जैसे हमारे वक्ता उत्तराखंड के बारे में जो विचार रखते हैं, जो उनकी दूरदृष्टि है, विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का एक सपना हम साकार कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 3 दिवसीय अधिवेशन से जो प्राप्त विभिन्न विचार हमारे इस संकल्प को और साकार करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और आप सभी के सहयोग और सहभागिता से हम उत्तराखंड को भी देश का जो अग्रणी राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। आप सबकी शुभकामनाएं। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः IASSI और दून विश्वविद्यालय का एक बार आभार व्यक्त करते हुए और आप सभी का देवभूमि आने पर आप सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए और इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए मैं सभी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप दूर दूर से पधारे हैं, आपने इतना समय दिया है, आपने इतना प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपका ये प्रयास सार्थक होगा और देवभूमि को भी नई ऊर्जा प्राप्त होगी और आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir. We are very confident that under your leadership, Uttarakhand is going to be the state of the country. With these words, I now have the pleasure of introducing Dr. I.C. Awasthi, Member Secretary, IASSI, and Professor, Institute of Human Development, New Delhi. A PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Dr. Awasthi works tirelessly in the areas of labor, employment, and livelihood issues and on development evaluation. Sir, I request you to please propose the vote of thanks for the inaugural ceremony. Sri Pushkar Singh Dhami ji, Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Dr. Ramesh Chand, Member Niti Aayog, Government of India, Professor Sachin Chaturvedi, Vice Chancellor Nalanda University and Chairman IASI, Professor Surekha Dangawal, Vice Chancellor Doon University, Dehradun, Professor Alakhan Sharma, Director Institute for Human Development, Professor Rajendra Mamgen, Professor Economics, Doon University, and Organizing Secretary, 24th IASI Annual Conference, and the distinguished scholars and delegates present here. We have witnessed brilliant and insightful addresses by distinguished scholars in this inaugural session. We extend our sincere thanks to all of them for their valuable contribution, which have set a profound tone for proceedings ahead.
We are deeply honored and privileged to have with us Sri Pushkar Singh Dhami ji, Honorable Chief Minister of Uttarakhand, as the chief guest for this inaugural session. Sir, your presence today is a source of great encouragement and inspiration to all of us. Under your dynamic leadership, Uttarakhand has achieved remarkable progress across different sectors, strengthening its path of development and prosperity. On behalf of all present here, we convey our heartfelt gratitude to you, sir, for gracing this occasion and lending your support to this important gathering. I also extend, on behalf of ISC and myself, a very warm welcome to all distinguished scholars and paper presenters who have joined us from various parts of the country as well as from abroad. We eagerly look forward to your valuable contribution over the next 2.5 days. Hosting this conference at the University will remain one of the most cherished and memorable events for all of us. Thank you so much. Thank you so much, Avasthi sir. And thank you to a host of dignitaries for, for your presence on the inaugural session of the 24th Annual Conference of IASSI. I thank you all for gracing this occasion and making this a happy event. We thank everybody sitting in the audience who have made this event possible for your kind presence. I'm reminded of a very wonderful quote from Swami Vivekananda, which says, "Arise, awake, and stop not until the goal is achieved." I hope all of us keep this in mind for the next 3 days. I thank our Honorable Chief Minister, our dynamic Honorable Chief Minister, Shri Pushkar Singh Dhami ji, again for gracing this occasion and taking out time for all of us from his very busy schedule. I request you all to keep standing till the time the dignitaries leave the auditorium. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. We thank our host of dignitaries.